ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So upayena nigrihniyaat vikshiptam kamabhogayoho suprasannam laye cheva yatha kamo layastatha. Now yesterday we saw, before that, in that 41st sloka, that manasaha nigraha tad bhaved aparikhedataha. So Acharya Shankara has very clearly said here that one should become aparikhinna vyavasayavan san. This is to be underlined. And vakshamanena upayena kama bhoga vishayeshu vikshiptam manaha nigruhiniyat nirundhyat atmani eva ityartha kimcha liyate asmin iti sushupto layah tasmin laye cha suprasannam ayasa varjitam api iti etat nigruhiniyat iti anuvartate. Now, in these two conditions, mind has to be controlled. This we saw yesterday. So now the question is asked, what is the upayam for the mind control? This is what is told. So one more thing, suprasannam chet kasmat nigruhyata iti uchyate. If the mind is attained the laya sthiti, in deep sleep state, sushupti, where it is already becoming tranquil, quiet, calm, and such a mind, suprasannam chet kasmat nigruhyata. And why should we control? Leave it. After all, we want peace of mind. We are getting it in deep sleep. So continue to sleep. Acharya says, since yasmat yatha kamaha anartha hetuhu tatha layah api. This is a beautiful one. Just as kamaha, desire, is anartha hetu, the source of all evil and sorrow. Similarly, laya also is anartha hetu, because we saw in Patanjali Yoga Sutra also, in Ishavasya Upanishad also, that one takes you to one darkness, other takes you to greater darkness. Think about it. I am trying to correlate, so you know. So that mind which is awakened in waking state is running after different objects. Kama bhogeshu. Kama bhogeshu vikshiptam manaha. Otherwise, if mind is withdrawn laya,
इट्स इन डीप स्लीप स्टेट, अविद्या अज्ञान स्थिति। तो मन को न तो यहाँ पे रहने देना, न तो काम भोगेशु, काम वस्तुओं में, विषय वस्तुओं में भगा देना नहीं, वो भी नहीं चाहिए। वहाँ पे भी घूमना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकांत में वो नींद में चले गए वो भी है। क्योंकि दोनों स्थितियों में आचार्य जी कहते हैं अनर्थ हेतु, ये भी अनर्थ हेतु और वह भी अनर्थ हेतु। अब हमारे जीवन में क्या है, इस दोनों की स्थितियों के अलावा तीसरी स्थिति हमें पता नहीं। तो हम मन को भगाते हैं, जगाने के बाद अपने आप भागती रहती है मन विषय भोगेशु, काम भोगेशु। थकने के बाद सो जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न उठाया गया कि देखिए, यदि आपको शांति ही चाहिए तो एक नींद की गोली लेके सो जाओ, बात खत्म ना। अब देखिए मेडिसिन में भी यही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए जब साइकिक पेशेंट्स हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू डॉक्टर्स हियर, तो गुस्सा करेंगे डॉक्टर्स, बट एक्चुअली व्हाट हैपन, आपके पास और कोई दवाई नहीं है। आइदर डाइट और काउंसलिंग और स्लीपिंग पिल। समझ में आ रही बात? अब पेशेंट एकदम सो गया तो बीपी नॉर्मल हो गई, बहुत डॉक्टर साहब खुश, पेशेंट के अटेंडेंट जितने भी वो भी खुश। तो ये अंडरलाइन करिएगा, नींद डीप स्लीप स्टेट लय स्थिति ऑल्सो अनर्थ हेतु। और जागने के बाद when mind is in waking plane running after different objects, that also is a source of evil. It's a beautiful mind management. The last few slokas of Advaita Prakarana speaks very beautiful techniques. Therefore kah saha upayaha, so ataha kama vishayasya manasah nigrahavat layadapi nirodhavyam ityartah. Just as the mind has to be withdrawn from the various sense objects whipped by passion and desires, just as mind has to be withdrawn from those externalized, externally extroverted mind, similarly mind has to be withdrawn, nirodhavyam, controlled from not allowing it into getting into deep sleep state. अब देखिए, initial sadhana is what our general sadhana. If any person just controlling krodha and that is anger, and trying to live some kind of disciplined life, and trying to keep a heart pure of full of love and not to hate, and some kind of a discipline, some good studies, some devotion towards Lord, all this is fine. But as and when we progress and when we reach this state, the hall of something called controlling the mind now, on the seat of meditation, at least beginning, then we practice, and then immediately the mind is so much of disturbed, and then we experience that one thought, if it is maintained in the mind, thought of Bhagavan, it is maintained in the form of japa, we are so happy. Except the Bhagavad Chintan, mind is not wandering, it's a good state. But then mind is alive there. So then if you want to enter into silence within the heart, that thought also has to stop. When I want to withdraw and establish at that time the one who is chanting, or the source of the chanting, the chamber of the heart, when we wanted to try to withdraw there, it enters into sleep. And that is the difficulty now is pointed out in the next sloka also. So kaha saha upayaha. Now how to keep that mind? Mind should not be in waking state, it should not be whipped up by passions and desires. You should not run after it. Peaceful, calm. But peaceful mind will enter into deep sleep. You should not allow that mind into deep sleep state also. So how to do it? Therefore, isliye yesterday is a beautiful thought. What does that sloka says? Aparikhinnaha.
देखिए, अपरिखेदतः, निग्रह तद भवेद अपरिखेदतः, खिन्नता के बिना. That's why our sadhana, yesterday we saw that we should never ask this question, और कब तक करते रहेंगे. This should not be asked. And therefore next sloka says, dukkam sarvamanusmrutya kama bhogan nivartayet ajam sarvamanusmrutya jatam naivatu pashyati. दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति. Acharya says now in this sloka, sarvam dvaitam avidya vijrumbhitam dukkhameva iti anusmrutya kamabhogat kamanimittho bhogah ichcha vishayah tasmad viprasrutam विप्रसृतम मनः निवर्तयेत वैराग्य भावना इत्यर्थः. अजम ब्रह्म सर्वम इति एतत् शास्त्र आचार्य उपदेशतः अनुस्मृत्य तद विपरीतम द्वैत जातम नैव तु पश्यति अभावात्. ब्यूटिफुल. नाउ अगेन आचार्य सेज सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम. सो दुःखमेव इति अनुस्मृत्य. Now first sadhana, that again it was told in Vivek Chodamani also. Dosha drishtya muhurmuhu. Now first principle is that sarvam dukkham iti sarvam dvaitam, all this is dvaitam which is there, duality, it is all avidya vijrumbhitam. Beautiful. All this is actually born of ignorance, an expansion of ignorance. Avidyasya vijrumbhanam eva dvaitam bhavati. It is not that it's vijrumbhana. Vijrumbhana means it is uncontrollably expanded. This avidya had gone into our system, the body, the mind, the intellect, the vichar, the thought. Everything, wherever duality is there, that is the expansion or the expression, or we can say glory of Maya. Sarvam dvaitam, avidya vijrambitam. Therefore, dukkhameva. Therefore, all this dvaita is nothing but the source of sorrow. These are all the golden words. What is the source of sorrow? Dvaitam. We have been seeing this thought. So therefore, iti anusmrutya. Anusmrutya means what? Remembering. Remembering. Why it is anusmrutya? Anu means after. So smriti comes after the knowledge. पहला जानकारी प्राप्त किया, तो इसके बाद स्मृति मिलती है कि नहीं? स्मृति बाद में आती है. हाउ कैन यू रिमेंबर व्हाट यू डोंट नो? अच्छी चीज है. तो यहाँ पे अनुस्मृत्या का मतलब क्या है? इससे पहले ज्ञान हुआ. ज्ञान माने प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं, परोक्ष ज्ञान. तो थोड़ा सा ज्ञान हुआ. सो दुःखमेव इति अनुस्मृत्य सर्वं द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुःखमेव इति अनुस्मृत्य कामभोगात् कामनिमित्तो भोगः इच्छा विषयः तस्मात् विप्रसुतं मनः निर्वर्तयेत् वैराग्य भावना इत्यर्थः. Now the question is now number one again let us see slowly that first technique which is given here is vairagya. Sarvam dvaitam
अविद्या विजृंभितं दुःखमेव इति अनुस्मृत्य कामभोगात् निवर्तयति। फर्स्ट इज गिवन वैराग्य। यहाँ पे दो अभ्यास है, अगेन रिफर टू भगवद गीता एंड ऑल्सो पातंजलि योग सूत्रास। द वेरी टू स्टैंडर्ड साधनास अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः योग सूत्र। सेकेंड टेक्निक इज व्हाट भगवद गीता ऑल्सो सेज अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। So this abhyasa and vairagya. Now these two are to be done simultaneously. That is the meaning will be told now. So number one is when kama bhoga comes in front of us. देखिए kama bhogat kama nimitto bhoga. आचार्य भाष्य kama bhoga means kama nimitto bhoga. That bhoga जो जिस भोग का निमित्त काम है, इसका मतलब क्या है? काम के बिना भोग होना या भोगना असंभव। देखिए आप कोई भी भोग आप ले लें, इसके पीछे काम है ही नहीं तो दैट भोग्य वस्तु ही ना रहे। किसके आगे? साधक के आगे, जिसके अंतःकरण में उस चीज के प्रति यदि कामना न हो तो जो वो वस्तु भोग्य वस्तु न बनती है। और जिसके मन में दारू पीने का इच्छा ही नहीं है और भोग मन का कामना भी नहीं है दारू के प्रति, तो उनके सामने दारू का शीशा लगा दिया तो पिएगा क्या? इसके मन में भोग प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मन में कामना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? हम विचर रहे हैं दुनिया में, ये सारे अनेक प्रकार के विषय वस्तुओं के बीच में हम गुजर रहे हैं, विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। सारे वस्तु हमको लुभा नहीं लेती है ना, अनेक प्रकार के वस्तुएं हैं, हर वस्तु हमको नहीं लुभा नहीं लेता हमारा दिल। तो ऐसा जो वस्तु है, जिस वस्तु के प्रति मेरे मन में यदि कामना हो, तब उस वस्तु और मेरे बीच में एक संबंध मैंने जोड़ना चाहता हूं, उस संबंध ही भोगना, उस संबंध को ही कहते हैं भोगना। सो काम भोगात काम निमित्तो भोगः इच्छा विषयः तस्माद् विप्रसृतं मनः। उस that kind of a mind which is withdrawn, controlled from this kama bhoga. Now how do you do it? वैराग्य। और वैराग्य का सहारा क्या है? ज्ञान होना चाहिए पीछे। मैंने इसलिए कहा गया अनुस्मृत्य। रिमेंबर, पहले गुरु के पास जाओ तो गुरु कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देता है, कह देता है कि ये सब यही है। इसके बाद फिर हम बार बार हम याद करते रहेंगे। इसके एप्लीकेशन जो है, उसको हम कहते हैं अनुस्मृत्य। किसके बाद? ज्ञान के बाद। तो इमीडिएटली द थॉट यू मस्ट ब्रिंग, ये जो वस्तु यदि काम भोग निमित्तः काम भोग दुःखम इति अनुस्मृत्य काम भोगात् काम निमित्तो भोगः, whatever वस्तु comes to us, immediately अनुस्मृत्य वैराग्य उदय के लिए क्या करना चाहिए? सर्वम दुःखम द्वैतम इति, this is a duality, this is only gives me sorrow इति अनुस्मृत्य। माने ऐसा रिमेंबर, ऐसा स्मरण करो, याद करो, करते रहना याद। इसको कहते हैं अपने आप को समझाना, मन को समझाओ, याद दिलाओ। दैट इज वाई वेदांत विहित विज्ञान रहितैः सर्वयोगिभिः, आचार्य सेज, those yogis who are devoid of the knowledge of Vedanta,
दे अलोन आर स्केर्ड ऑफ अभये भयदर्शिनः बिकॉज आत्मनाश भयम भवति. We saw yesterday, day before yesterday. That is the reason why every sadhana has to be backed by this Vedanta Vijnana. और मैं आपको आगे कुछ बातें हैं कहेंगे. तो therefore काम भोग कामात् निमित्तो भोग इच्छा विषय तस्मात् विप्रसृतम. विप्रसृत माने हटा दिया मन को, निवृत्त करा दिया, मन को उस चीजों से हटाया. कैसे हटाया? याद दिलाते हुए. किस चीज की? द्वैतम की. किस तरह से? सर्वम द्वैतम दुखम भवति इति. तो अस्मा विप्रसृत मनः निवर्तयेत वैराग्य भावनः इत्यर्थः. दिस साधना इज कॉल्ड वैराग्य. This is called vairagya. Now, vairagyabhyam abhyasa vairagyabhyam tan nirodha न तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. ये दो प्रैक्टिस है, ये एक के बाद एक नहीं हो सकता है. This is very important other thought. This is not mentioned here, but in Shastras, in Upanishads, in also Yoga Shastras, clearly mentioned this abhyasa and vairagya has to be done simultaneously. इसका मतलब क्या है? देखिए, suppose there is a vastu is there, you wanted to withdraw the mind from that particular vastu. Kama nimitta bhogat, that vishaya vastutvat nivritto manaha. Very good, withdraw. But when you vairagya is practiced, but then that particular vairagya is one withdraw, but where do you keep that? Abhyasa has to be practiced to divert that mind, withdrawn mind onto the self or into the self. अब निवृत्त करा के कहाँ रखोगे मन को? ये प्रॉब्लम क्या है? इसलिए यहां बताया कि if you are withdrawing the mind, where does the mind will go? जबरदस्ती खींच लिया तो कहां जाएगी? लय में जाएगी, नींद में चले जाती है ना. So mind withdrawn from all Dvaitam. Every Dvaitam is bad. This is called, fantasy, a self-withdrawal symptoms of sudden people who are extremely, highly stressed out, confused, those who are dejected with their lives. आप देखे होंगे ऐसे लोगों को, मैं कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता. कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खाना बंद कर देते, पीना बंद कर देते, बात करना भी बंद कर देते. मैंने देखा स्वयं. Therefore, here it is said, mana nivartayet vairagya bhavana. Ajam, now दूसरा क्या है? अजम ब्रह्मा सर्वमिति एतत् शास्त्र आचार्य उपदेशतः अनुस्मृत्य तद विपरीतम द्वैत जातम नैव तो पश्यति. Very beautiful. Now second thing is that अजम, this दूसरा अभ्यास क्या है? अभ्यास करना पड़ेगा. अभ्यास. वैराग्य तो हो गया. वैराग्य कैसे? दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः, by seeing faults in the every vastu. That vastu actually, see, every object there is something that which is binding me. So when this thought is vairagya is practiced, number one, vairagya. Second thing is, again Acharya says in the beautiful God, ajam sarvam anusmrutya. देखिए, दुक्खम सर्वम अनुस्मृत्य, अजम सर्वम अनुस्मृत्य. अब क्योंकि ना वैराग्य से आज द प्रॉब्लम इज दैट वैराग्य दिखाया, दुनिया से मन को हटा दिया, निवृत्त कर किया, और मन तो निवृत्त हो गई, फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं? नींद में चले जाती है, और नींद में नहीं जाने देना उसको. इसीलिए अजम अनुस्मृत्य. अजम माने अब्रह्मा, ब्रह्म सर्वम इति
अनुस्मृत्य, ये सब अरे द्वैत से माइंड विथड्रॉन फ्रॉम ड्युअलिटी, बट ये सब सारे क्या है एक्चुअली? जगत सर्वम ब्रह्म। तो इमीडिएटली से देखिए, उसी वस्तु से मन को भोग वृत्ति से हटा दिया और फिर इमीडिएटली तुरंत कह दिया कि ये जो वस्तु जो द्वैत दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये वास्तव में ब्रह्म ही है। तो वहां का वही बोध हो गया, है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? मन को हटाया, हटा के फिर तुरंत समझाया कि ये ब्रह्म है। और सब सारे मेरा ही रूप है, तो जब मेरा ही रूप है तो मुझे क्या भोगना है? ये प्रैक्टिस करिए। अपने आप को क्या भोग लो? जहां पे द्वैत भी नहीं है तो त्रिपुटी का अस्तित्व रहना असंभव। न ज्ञेय है, न ज्ञातृ है, न ज्ञानम है, न भोग्य भोक्तृ भोग। इट्स वेरी टेक्निक इट इज। अदरवाइज हम क्या करते हैं? देखिए, हम साधना हमारा पूरा नहीं करते हैं। हम करते हैं मन को हटा दो, दुनिया से हटा दो, इसके चिंता में मत पड़ो, विषय वस्तु के बारे में सोचो मत, हटा दो हटा दो हटा दो। हटा तो दिया, फिर मन क्या कहाँ रखे? यहां पे जिस समय आप वैराग्य का बोध करा रहे हैं अपने मन को, उसी समय ब्रह्म भाव का भी जागृत कराना। ये भी यहां पे भी अनुस्मृत्य कह रहे हैं। देखिए, ये भी अरे बाबा याद करो कि ये द्वैतम सर्वम दुखम, द्वैत सारा द्वैत दुखमयम इति याद करो। अच्छा, और यही याद करो कि ये ब्रह्म है, वहीं पे याद करो, उसी समय याद करो, तत्काल ही याद करो। वाह! तो ऐसा करने से क्या होगा? मन लय स्थिति में जाने से अपना मन को बचा सकते हैं। तो लय में गया तो क्या होगा? आचार्य तो कह ही दिया, ये दूसरा अनर्थ हेतु। अब दूसरी बात है, अजम कहा दिया। अजम, अजम मीन्स व्हाट? अरे भैया, ये याद करो कि आप जिस चीज को देख रहे हैं, द्वैत वस्तु को देख रहे हैं, वास्तव में इसका जन्म ही नहीं हुआ। अजम। समझ में आ रहा है? न जातम इदम सर्वम, इदम सर्वम इदम सर्वम हम जो कह रहे हैं एक्चुअली न जातम, तो अजम। सो दिस द्वैत हम जिसको देख रहे हैं एक्चुअली वास्तव में इसका जन्म नहीं हुआ। हम वी हैव ऑलरेडी सीन नो इन वैतच्य प्रकरण। तो ये याद कर लो, सबसे श्रेष्ठ विचार यही है कि इसका जन्म ही नहीं हुआ। अजम या नहीं तो ये सर्वम ब्रह्ममयम इति अनुस्मृत्य। तो चलो ठीक है, कुर्सी भी भग ब्रह्म है, माइक भी ब्रह्म है, पेड़ भी ब्रह्म है, नदी भी ब्रह्म है, पहाड़ भी ब्रह्म है, आदमी भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्ममयम इदम सर्वम जगत सब ब्रह्ममयम एव। ऐसा फिर अभ्यास करो, अभ्यास करते रहना। इस अभ्यास से लोगों को, किसी को पता नहीं लगता कि आपके भीतर क्या क्या, कौन सी साधना चल रही है। अंदर तो टसाटस चल रहा है साधना, बाहर तो बेवकूफ जैसे दिखाई दो पड़ते, बात करो, कुछ व्यवहार करते रहो। देखिए, अजम ब्रह्मा सर्वमिति एतत् शास्त्र आचार्य उपदेश था। अच्छा, ये ज्ञान सर्वम ब्रह्म का ज्ञान कहां से मिला? शास्त्रतः आचार्यतः। देखिए, आचार्य उपदेशतः, सॉरी।
आचार्य का उपदेश से और शास्त्रों से हमको ये पता लगा कि ये सर्वम ब्रह्म है। अनुस्मृत्य, ऐसा बोध अपने आप को करा के, माने ये प्रैक्टिस करना है। इट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, ज्ञानाभ्यास। पहला क्या था? वैराग्य। दूसरा पंक्ति में क्या दिया गया? ज्ञानाभ्यास। अरे ज्ञान कहाँ से मिली? गुरु से, शास्त्र से मिली थी। तो जो मिला उसका अभ्यास करो। ब्यूटीफुल। तो यही है। तो माने श्रवण और मनन से महात्मा लोग कहते हैं श्रवण और मनन का फल नीच और मध्यम साधकों को मिलता नहीं। जो इन्फीरियर स्थिति में है और एक बात भी मैं कह देता हूँ, इस पर आगे आएंगे, और जो मध्यम स्थिति में है उनके लिए श्रवण और मनन का फल तुरंत आता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि श्रवण बंद करो मनन बंद करो, ये नहीं कह रहे हैं। हर उसका फल मिलने में देरी होगी, बस ये याद रखना। श्रवण करे मनन भी करे। इसलिए लोग कहते होंगे हमसे, कहते होंगे क्या कहते हैं कि देखो इतने आप रोज़ सुबह शाम प्रवचन में जाते हैं, सारे ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, और वैसे के वैसे ये आदमी घर पे, कोई परिवर्तन नहीं है, क्या फ़ायदा? अरे भाई हम मार्ग पर हैं, मैं जानता हूँ। तू बिना जाने कुत्ता जैसे चिल्ला रहे, मैं जानबूझकर कुत्ता जैसे चिल्ला रहा हूँ। इसका मतलब मैं जानता हूँ कि मैं कुत्ता जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। अभी जैसे कुत्ते भौंकते हैं मैं वैसे ही भौंक रहा हूँ, मगर भौंकते समय मैं ये जानकारी मुझे हो रही है कि मेरा ये प्रकृति है, वो अपने आप कूद के आगे जा रही है। मैं इसका नियम कर नहीं सक रहा हूँ, नियम में ला नहीं सकता हूँ अभी इस समय। अभी मेरा अभी सामर्थ्य नहीं है। ये ऐसा मैं मजबूरी में करना पड़ रहा है, नहीं कर रहा है मैं, प्रकृति अपने आप कर रही है कि ये ज्ञान मैं जानता हूँ। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब इससे पहले हम हैं, इसे उतना आगे तो नहीं गए, तत्ववित्त नहीं बना, तो फिर हम कहाँ आते हैं? कम से कम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा न कर्ता अहम इति मन्यते। तो कम तो वहाँ पे आ जाओ। तो श्रवण और मनन का फल जब हम नीच अवस्था में या मध्य अवस्था में या साधना मार्गगाहा, जैसे आचार्य कहते हैं, कह चुके हैं इसे पहले 2-3 श्लोक में, पहले श्लोकों से पहले, कि वहाँ पे मार्गगाहा, जो योगी मार्ग पर है, हीन मध्यस्था दृष्टयः, सो देयरफॉर ये हमारा साधना यहाँ पे बताया गया, वैराग्य। दूसरा क्या है? अभ्यास, ज्ञान अभ्यास, करते रहना और करते रहना, रिपीटेड प्रैक्टिस। सो थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस ओनली वी कंक्लूड ऑल दैट इज अजम। तो अभ्यास करने से भी एक दिन ऐसा पता लग, पहला हम क्या करते हैं? सारे वस्तुओं को हम देख रहे हैं, द्वैत का भान हो रहा है, द्वैत का अनुभव हो रहा है, और द्वैत को हम देखते हैं, और देखते देखते हम कह रहे हैं कि ये सारा जो दिखाई पड़ रहा है सामने, ये सारा ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म ही अनेक रूप में विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं, हमारा अनुभव दिला रहे हैं हमको, ये सब रूप में ब्रह्म ही है करके पहला साधना। इसके बाद जो दिखाई पड़ रहा है सामने, वो एक्चुअली अनेक रूप में ब्रह्म भास रहा है, वो चला जाएगा, ब्रह्म ही है, बस ये अनुभव मिलेगा। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि सर्वम ब्रह्म ही गलत है। सर्वम माने अनेकता हो गया, तो ब्रह्म तो एक ही है, तो सर्वम ब्रह्म कैसे हुआ? जो सर्व हमारे अनुभव के द्वारा हम जो अज्ञान स्थिति में हैं,
जब हमारा अनुभव हो रहा है कि ये सर्व, तो ये सर्व क्या है वास्तव में, हमको उपदेश देने के लिए सर्वम ब्रह्म कहा गया। अनुभव में सर्वम ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्म ही है बस। तो और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे कह के आज देखिए, महात्मा लोग बताते हैं, अगले श्लोक भी हम देखेंगे, तो चलो ठीक है, हम इसको पहले खत्म करेंगे। अजम ब्रह्म सर्वमिति एतत् शास्त्र आचार्य उपदेशतः अनुस्मृत्य तद विपरीतम द्वैत जातम। इसका विपरीत जो है, ऑपोजिट, द्वैत जातम नैव तो पश्यति। इस अनुभव और वैराग्य और अनुभव से व अभ्यास से द्वैतम न पश्यति। मीनिंग, अब देखिए आचार्य जी कहते हैं क्यों, किस लिए न पश्यति द्वैतम, अभावात, है ही नहीं। देखिए द्वैतम न पश्यति माने द्वैतम है मगर बेचारा ये देख नहीं पा रहा है, ये अंधा हो गया। न तो ये देख नहीं पा रहा है इसीलिए कि ये देखना नहीं चाहता, न तो ये अचानक आजकल ब्रह्मज्ञानी होकर घूम रहे हैं इसीलिए इनके सामने द्वैत का दर्शन कभी नहीं होता, इसलिए द्वैतम न पश्यति। ना 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 ना, द्वैत है ही नहीं, अभावात, अभावात द्वैतम न पश्यति। देखिए तो संक्षिप्त में यदि कहना हो तो हमारे साधना क्या है, वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य और अभ्यास से ही मन को विक्षिप्त दशा से हम बचा सकते हैं, लय से नहीं। लय का बाद में देखेंगे अगले श्लोक में। नहीं तो विक्षिप्त होकर माइंड टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जैसे हमने कहा कि कल हम देखा कि एक एक टुकड़ा एक एक टुकड़ा एक एक टुकड़ा एक एक मन अनेक प्रकार अनेक टुकड़े हो गए और एक एक टुकड़ा एक एक चीज में फंस गए। अच्छा आप भी बताइए कि हम सब साधना मार्ग पर है तो इसका प्रमाण क्या है? हाँ जी, क्या शुरू हो जाएगा? क्रोध। अच्छा कम, मैं सोचा क्रोध शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना, शांति का अनुभव होने लग जाती है, शांति की अनुभूति। ठीक है, विक्षिप्त हो तो होता है, ठीक है, एक क्षण के होने देना। चलो आपको मैं कंसेशन दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, मैं अपने आप को कंसेशन दे रहा हूं। न तो मैं गड़बड़ में पड़ जाऊंगा, क्योंकि ना आप कहेंगे स्वामी जी आप तो शांति स्वभाव वाले हैं तो गुस्सा नहीं दिखाना, तो हम ऐसे रहेंगे। हम ऐसे रहेंगे, ये हमारे फायदा के लिए है। क्या फ़ायदा है? हम बदलते नहीं, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये क्या कैसे चलता है? गुस्सा दिखाऊंगा। इसलिए मैं अपने आप को कंसेशन दे रखा हूँ कि मेरा मन भी विक्षिप्त हो जाता है कभी कभी, ये काम नहीं होता है तो गुस्सा तो आता है, आने दो, मगर ये शाश्वत नहीं है। दैट इज अ ब्यूटी। ठीक है, अगले श्लोक बढ़िया है। लये संबोधयेत् चित्तम् विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। लये संबोधयेत् चित्तं
विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकाशायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। अच्छा, और एक बात है, पहले जो बात मैंने देखिए, ये सर्वम ब्रह्म का अभ्यास जो है, ये सर्वम ब्रह्म आचार्यतः, आचार्य उपदेशतः, शास्त्रतः, ठीक है, शास्त्र के द्वारा और आचार्य के द्वारा हमें एक ज्ञान मिले। क्या है ज्ञान मिला? सर्वम ब्रह्म करके, तो ठीक है। अच्छा, अब यह एक बार सुनिए ध्यान से। जिसके मन में राग है, जिसके मन में राग है, उसको ये उपदेश नहीं देना चाहिए। कौन सी उपदेश? सर्वम ब्रह्म। क्यों? जिसके मन में राग है और उसको आप जाके कहोगे इससे कि बेटा ये सर्वम ब्रह्म है, तो इसका राग और भी बढ़ जाएगा। ये कहेगा कि रसगुल्ला में भी ब्रह्म है, घर बनाने में भी ब्रह्म है, सब चीज़ करने में भी ब्रह्म है, आप ही तो कहा सर्व ब्रह्म है, तो मेरे राग है, रहने दो। सो हर भोग में ब्रह्म है, हर भोग में, सारे भोग आ गए इसमें, और खूब भोगे ब्रह्म ही है। ऐसा सिद्धांत प्रतिपादन कई लोग कर चुके थे इस पृथ्वी पे, और लोगों को बिगाड़ के रखा। और इसका उदाहरण किसका लेंगे? महात्मा लोग भगवान श्री कृष्ण जी के उदाहरण ले लेंगे, क्या नहीं तो दुर्वासा महामुनि का उदाहरण ले लेते हैं, ऋषि मुनियों का उदाहरण ले लेते हैं कि देखो वो कैसे जिए, आप भी वैसे ही है। तो इतने शास्त्र जो आचार्य कहते हैं, पातंजलि के सूत्र में दिया गया, भागवत में दिया गया है कि शमः, इंद्रिय निग्रह, दमः, ये सारे चीज़ों बेकार है। तो क्या होगा? सर्वम ब्रह्म का उपदेश जिसके मन में ज़्यादा राग है, उसको ये उपदेश कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका राग बढ़ जाता है। क्योंकि सर्व ब्रह्म है, तो सर्व ब्रह्म है तो सब तरह प्रकार के भोग लो। तो नियम, संयम, ये इनका डिक्शनरी से हटा देता है वो। समझ में आ गई बात? इसीलिए अधिकारी का प्रस्ताव। अधिकारी में क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तब इसको सर्व ब्रह्म कहा गया। तो ये ब्रह्म जो अनेक रूप में भास रहा है, अनेक वस्तुओं के वस्तु के रूप में भास रहे हैं, और अनेक प्रकार के भोगों के रूप में उपलब्ध है, वास्तव में ये तो ब्रह्म का ये शेष है, ये वास्तव में ये ब्रह्म का एक शेड है, एक छाया है, ये तो सच नहीं है। तो ब्रह्म का अनुभव यदि करना हो तो शुद्ध ब्रह्म का आदि अनुभव करना हो, ये वस्तु रूप में नहीं मिलेगा, हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। ऐसा जानकर अंतर्मुख होकर भगवान का जो ध्यान करते करते तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, ऐसा जो अनुभव लेता है वही है तो परमात्मा या तो जीवन मुक्त पुरुष बनेगा वो। तब बनेगी बात। इसीलिए कहा जाता है कि सबको ये ज्ञान मत देना बाबा, गड़बड़ हो जाएंगे। सर्वम ब्रह्म, ये याद रखकर हम आगे जाएंगे। एवं अनेन ज्ञान अभ्यास वैराग्य द्वय उपायेन लये सुषुप्ते लीनं संबोधयेत् मनः आत्मविवेक दर्शनेन योजयेत् चित्तं मनः इति अनर्थान्तरं विक्षिप्तं च कामभोगेषु शमयेत् पुनः। एवं पुनः पुनः अभ्यासतः लयात् संबोधितं विषयेभ्यश्च व्यावर्तितं न अपि साम्यापन्नम् अंतरालावस्थं सकषायं सरागं बीजसंयुक्तं मनः इति विजानीयात्।
ततः अपि यत्नतः साम्यमापादयेत्। यदा तु समप्राप्तं भवति समप्राप्त्य अभिमुखी भवति इत्यर्थः। ततः तन्न विचालयेत् विषयाभिमुखं न कुर्यात् इत्यर्थः। दिस आर ब्यूटिफुल वंडरफुल टिप्स वर गिवन हियर। अच्छा, फर्स्ट वन, देयर आर 3 कंडीशंस। मैं आपको पहले ये कंडीशंस लिख लेना, तो इसके बाद फिर हम विचार करेंगे। ये कंडीशन है विक्षिप्त दशा। जब मन विक्षिप्त स्थिति में है तो फिर अनेक प्रकार के विषय भोगों के पीछे भागती रहती है। ठीक है, भगाओ, मन भागता है, भागने दो। ये एक दशा हो गई। दूसरी स्थिति क्या है? लय। विक्षिप्त दशा से निवृत्त किया तो लय में चले जाती है। और तीसरी स्टेट है, ये क्या है? When the mind is neither in विक्षिप्त nor in लय। अच्छा, तो ब्रह्मचिंतन न वो भी नहीं हो रहा है, न ब्रह्मचिंतन हो रहा है, न लय स्थिति में चला गया, न विक्षिप्त दशा में भी है। तो ऐसा मन को महात्मा लोग कहते हैं कषायम, सकषायम। It is a near word I am using. I am not exactly using the English word. It's something like something. It is not in deep sleep state mind. It is also not in agitated condition, right? It is at the same time not thinking about Brahman, but something is in suspended condition with high potentiality within its womb to explode at any second, any moment. That condition of the mind is called kashayam. Because that is with seed, Acharya explains. So that particular state, that bhayankar state of the mind. So mind has to be withdrawn from its agitations, externalization, I mean extroverted condition. ये एक हो गई बात. Not allowing it to go into sleep again. And ब्रह्मचिंतन ही करते रहना. But when these two are done, ब्रह्मचिंतन के लिए किसी गुरुमुखतः या आचार्य के द्वारा शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है तो ब्रह्मचिंतन क्या करेगा? न तो ये जरूरी भी नहीं, तो आचार्य से उपदेश भी लिया तो ब्रह्मचिंतन करना है, ये जरूरी भी नहीं है। देखिए, हमारा पास, सबके पास ज्ञान तो है, हम कितना मंथन कर रहे हैं इसका ज्ञान का, कितना हम मनन कर रहे हैं। तो ज्ञान है तो श्रवण हो रहा है। तो जितना श्रवण किया माने जितना समझा उसका मनन हो रहा है क्या? उसका भी नहीं हो रहा है। So that condition, where is not also thinking about Brahman also, लय स्थिति में भी नहीं गई, विक्षिप्त में भी नहीं है, तो it is in कषायम स्थिति. Something like, I don't know, I'm just equating, something like shock. He is aware, होश में है, बट सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा है। मर गए क्या? नहीं मरा। सो गए क्या? नहीं सोया। कोमा में चला गया? कोमा में नहीं गया। तो जवाब दो, हाँ। सुन रहे क्या? सुन रहे हो। दैट काइंड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड कषाय। तो इसका हम आगे कल देखते हैं। ऐसा है ना, देखिए, मार्ग पर जा रहा है, अच्छा ठीक है, जब हम नया गाड़ी से हम प्रैक्टिस करते हैं चलाना कार, स्टीयरिंग पकड़कर, तो न तो इधर जाएगा न तो इधर जाएगा, और उसको बैलेंस करते हुए बीच में रखना। और देखिए, इसीलिए जहाँ पे रोड बिल्कुल सीधा है, वहाँ पे कहाँ है, जलंधर लुधियाना में अबाउट 100 किलोमीटर रोड स्ट्रेट,
भूल गया मैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ हाँ, एक स्ट्रेट रोड, बहुत सफर, सो मेनी किलोमीटर्स, एकदम स्ट्रेट। और जो यहाँ ये एकदम स्ट्रेट है वहाँ पे ड्राइवर सो जाते हैं। और ड्राइवर का एक्सपीरियंस नहीं है तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड जाएगा। बाबा ना राइट साइड भी नहीं जाना, लेफ्ट भी नहीं जाना, बीच में रहो, बीच में ही रहते समय भगवान का नाम लो, बीच में रहते समय सोना भी नहीं। नहीं बीच में तो रह गया, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, न तो राइट साइड भी जा रही गाड़ी, न तो लेफ्ट साइड भी नहीं जा रही है, कंट्रोल में है, बीच में है, मगर भगवान का नाम नहीं ले रहा है, होश में तो है। हाँ, तो दैट इज अनदर डेंजरस स्टेट, इट्स कॉल्ड कषायम। क्योंकि कभी भी मन में एक थॉट आ सकता है कि यहीं पे उतर के चाय पी लो, रुक गई गाड़ी अचानक। So sabhija sthiti it is called. So this is all psychology. That's why our Indian the ऋषि मुनि लोग जितने हमारा मन के बारे में दिया है, अब उतना वेस्टर्न में कुछ भी नहीं है। बेकार साइकोलॉजी, इट इज ऑल बेकार, थर्ड रेट, आई टेल यू। फॉर एवरी एक्शन ऐसा मैं पैर हिला रहा हूँ, इसका समथिंग मीनिंग हो सकता है, एंड मोस्टली यू फाइंड नेगेटिव एनालिसिस ओनली फॉर एवरीथिंग। किसी ने बॉल पर टिक टिक कर रहा है, उसका भी नेगेटिव एनालिसिस किया साइकोलॉजिस्ट ने, बोलता है कि इसके नेगेटिव थॉट है कुछ बारे में, अगली बारे में, इसलिए दैट इज एक्सप्रेसिंग दिस एज दिस। The studying behavior is not the psychology purpose and all that. It is something deeper. It is something to manage your mind, something greater. So this is how we have to understand. So mind management, these are the conditions now. How to do it. एंड इस साथ साथ व्यवहार में भी घुमाना है माइंड को। जैसे क्लास खत्म होगा, अब अपने घर जाना है, मैं कमरे में जाना है, व्यवहार भी चलाना है। सिर पकड़ना है, कैसा होता है। इसलिए हमारा सांदीपन में एक जोक होता है, क्या है, तो जो सांदीपन में ज्वाइन होके तो वेदांत सुनता है ना, तो ये न तो ये दुनिया में जीने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि बेईमानी नहीं कर सकता बेचारा, झूठ नहीं बोल सकता ज़्यादा, तो थोड़ा बोल सकता है मगर वो बार बार वेदांत ज्ञान आ जाता है बेचारा, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब मेरा ही है, झूठ नहीं करना है, ये सब कर, वो तो बिगड़ गया। तो पूरे एकदम रमण महर्षि तपोवन महाराज जैसे, रमण महर्षि जैसे बनो, तो ये भी नहीं बन सकता। तो क्या कर सकते हैं, बस एक ही काम कर सकते हैं, वेदांत पढ़ो और पढ़ा। ऐसा बिगाड़ देते हैं गुरु आपको कि आप दूसरे काम के लिए लायक ही नहीं होते। एक के लिए काम लायक है, वेदांत श्रवण चिंतन, और कोई आके बोल तो बोल, बोलना आता है तो बोलो, नहीं तो चुपचाप बैठो। मजा है कि नहीं, ये मजा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सोचकर ज्वाइन होना सांदीपनी में, गेस्ट स्टूडेंट ग्रुप में जाना है तो सोचना जरा, सोच के जाओ। दिस इज द सिचुएशन। ओके, वी विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।